Now we see the next problem. A thin rectangular plate is uniformly deformed as shown in figure. Determine the shear strain. Take delta 1 is equal to 1 by 16 mm and delta 2 1 by 8 mm. Here this is a thin plate. Here this plate is deformed under the action of shear stresses like this dotted line. Here the delta 1 means deformation at this edge and delta 2 is deformation here. Then take shear stress. Here shear stress is denoted by phi. So phi 1 and here phi 2. These are the shear strain that we have to find. Total shear strain is the question. At P means at this point, यहाँ पर shear strain कितना होगा ये निकालना है. सबसे important चीज, you should know sign convention. It is somewhat different. Here in the first quadrant, if this deformation occurs, then you treat as positive, then second and fourth negative, and in the third quadrant it is positive. It means suppose this is x and y and deformation is like this here. Then this deformation in the phi 1 supposed to be, we have to consider positive because in the first quadrant, and this line here phi 2 it is in the fourth quadrant, that's why you have to consider negative here and here positive. In this way, this is the meaning of the sign convention we have to use for determining shear strain. Now, how to find shear strain? It is very simple. The basic thing that you know, strain is equals to delta L upon L. This is the basic equation that we know. Here, tan of any phi is equals to delta by L. As this inclination angle is very small, so tan phi can be written as phi only in radian. So here I can write phi delta and L in radian. So this is shear strain. So with the help of this equation we can find out the values of shear strain. Now phi 1 shear strains phi 1 is equals to delta L1 divided by L. Here delta L1 is 1 by 16 given and length is 25. The answer comes 0.00025 and radian. Similarly, phi 2 is equals to delta 2 divided by L plus delta 2 by L. So here 1 by 8 and it is 42. Here delta 2 is 1 by 8 and it is 42. So the answer comes here 0.0029 radian. These are the shear strains at P. Here sign conventions I have not used because it is both are positive. So here sign conventions positive. So I can write here total shear strain. Shear strain will be phi 1 plus phi 2 and it is equal to 0.025 plus 0.0029. So the answer comes 0.0054 radian.
This is the final answer. So in this way, we can solve problem on shear strain. Any problem you can solve of shear strain. Only one thing that you have to remember, shear strain, it is very simple to remember. Strain is equals to delta L by L, बेसिक इक्वेशन, वो कुछ चेंज होने वाला नहीं है. अब tan phi लेना है एंगल, रेडियन में इंक्लिनेशन. अब ये रेडियन में अगर है तो उसको tan phi निकालो एंगल देके, या तो फिर डायरेक्टली यू कैन कंसीडर रेडियन, सो यू विल गेट सेम आंसर. स्मॉल होने की वजह से. बाद में आपको मेन चीज जो ध्यान में रखना है वो है ये कि साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अगर आपको पता है तो आप shear strain की वैल्यू बराबर दे सकते. अभी इसमें से अगर एक ऐसा रहता तो माइनस हो जाता था. अब क्या होता है कि ये आंसर मिलेगा आपको पॉजिटिव निगेटिव करके 0.0054. MCQ के 4 में से एक मिलेगा पॉजिटिव, दूसरा मिलेगा निगेटिव. तब आपको साइन कन्वेंशंस परफेक्टली पता रहना जरूरी है और वेरी इजी है. वैसे बाकी नॉर्मल जो है अपने को तो है, यहाँ पे प्लस प्लस रहते हैं, वहाँ पे प्लस, माइनस माइनस है वो भी प्लस है ना. थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस y माइनस, तो ये माइनस माइनस होता है, तो ये भी प्लस. आप कैसे भी ध्यान में रखो. और ये दूसरा है माइनस. ओके, so in this way you can solve any problem on shear strain. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ए रिजिड बार ABCD, फिगर इज गिवन, ये फिगर दी हुई है. ए रिजिड बार ABCD इज हिंड एट ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट दिया है एंड ए लोड 20 किलो न्यूटन इज अप्लाइड एट सी पॉइंट जो है यहाँ पर 20 किलो न्यूटन लोड अप्लाई किया है, ये भी दिया है. द बार ABCD इज सपोर्टेड एट B एंड D. B और D पे दो सपोर्ट लगाए, ये ऊपर से लगा दिया, यहाँ पर ऐसे लगाया, इसको और फिर से सपोर्ट किया गया है दो जगह पर. कैलकुलेट स्ट्रेसेस डेवलप इन ईच बार. ये जो बार है ये एक है कॉपर का और दूसरा ब्रास का, इसमें स्ट्रेसेस कितने डेवलप होंगे ये पूछा गया है. अदर डेटा इज एज शोन इन फिगर. फिगर में सभी डेटा दिया गया है. जैसे कि ये है ब्रास, यहाँ पर ये बार जो है ये ब्रास है ऐसा, जिसकी लेंथ दी है 1.5. और दूसरा ये जो बार है यहाँ पर ये बार कॉपर दिया है. ब्रास का डायमीटर 25 mm है, यहाँ पर फाई दिया है, और E की वैल्यू 150 GPa. देन कॉपर का बार, उसका डायमीटर है 30 mm एंड E की वैल्यू है 80 GPa, ये दिया है. बाद में ये लेंथ वगैरह यहाँ पर अवेलेबल. सो कंप्लीट डेटा इज अवेलेबल हियर इन द फिगर. अब नेक्स्ट है, ये जो फिगर है ये डेटा गिवन में आ गई. अभी नेक्स्ट अपनी स्टेप होती है टू फाइंड. हियर द क्वेश्चन आस्क हियर सिग्मा इन कॉपर, दैट्स व्हाई आई पुट हियर C, एंड सिग्मा ब्रास मीन्स B और B like this. Sorry. The stresses in copper, stresses in bar, ये अपने को निकालना है. ओके, सबसे पहली चीज कोई भी प्रॉब्लम सुलझाते समय करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम निकालना, जिसमें एक्टिव रिएक्टिव दोनों फोर्सेस अपने को शो करना होता है. यहाँ पर ये जो ABCD बार दिया है उसकी मैं एक लाइन निकाल लेता हूं. ABCD, दिस इज द लाइन वेयर दिस इज A एंड दिस इज D point. Here at this point there is C and B and here C. A, B, C, D. Okay.
अब यहाँ पर एक मेन चीज है, ये लोड लगाने से, ये जो लोड दिया है यहाँ पर, ये इस लोड से क्या होगा, ये जो बीम है ए बी सी डी, ये ऐसी नेचुरली डिफ्लेक्ट होंगी, नीचे आएंगी, इस लोड से नीचे आने की कोशिश करेगा अगर ये सपोर्ट नहीं है तो। ओके, अब ये नीचे आ रही, ये बार इसको रोक रहा है, बराबर है, कॉपर बार, तो यहां पर इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगी, ये लोड इसको कंप्रेस करेगा। सो हियर एट कॉपर कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, कंप्रेशन, और कॉपर बार इन कंप्रेशन, कॉपर बार इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में रहेगा ये। एट द सेम टाइम ये अगर पुल ऐसे खींचते हैं तो नेचुरली इस बार में टेंशन डेवलप होगा। सो ब्रास इन टेंशन, ब्रास जो है ये अंडर टेंशन रहेगा, बराबर है। उस हिसाब से अपन फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। ये समझ में आ गया, यहाँ से खींचा गया तो इसमें कंप्रेशन आएगा, और यहाँ से खींचा गया इसमें टेंशन आएगा, बराबर है। सो हियर दिस इज हिंज सपोर्ट, अपने को ये पता है। रोलर सपोर्ट अगर है तो एक रिएक्शन, हिंज सपोर्ट है तो दो रिएक्शन, बराबर है। सो हियर एट दिस ए पॉइंट आई एम गोइंग टू शो हियर 2 पॉइंट रिएक्शंस, आर ए and RB, again RA, RA। अब इसमें एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, तो इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, अदरवाइज ये दोनों भी RA लिख दिया मैंने, तो RA वाई डायरेक्शन में, या तो RA भी लिख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो यस लिख सकते हैं, या तो फिर RA यस लिख सकते हैं। ओके, सो दीज 2 रिएक्शंस विल डेवलप एट हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट अगर है तो 2 रिएक्शंस आएंगी। ओके, इस बार में कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन बोले तो अपन, ये अगर बार है, ये दूसरा बार, कंप्रेशन अपन शो करते हैं एरो टूवर्ड्स द एंड। अगर ये बार है बी यहाँ पर, तो ये हो गया एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट, तो यहां पर जो रिएक्शन बताना है ये रहेंगी अपनी इस तरह, एरो टूवर्ड्स द एंड। यहां पर टेंशन शो करना है, तो ये एंड अगर पॉइंट है तो ये रहेगा टेंशन। ओके, सो दीज आर दी फोर्सेस। यहां पर जो फोर्स है, इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं फोर्स P इन कॉपर, and force P in brass। ओके, तो ये फोर्सेस है, और एक्चुअल जो फोर्स लगाया हुआ है दैट आई हैव टू शो हियर। दिस इज द फोर्स विच इज अप्लाइड हियर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन उसकी मैग्नीट्यूड है, बराबर है। सभी फोर्सेस हो गए, 1 2 3 4। अब इस FBD में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ अननोन्स। इसमें हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है ही नहीं, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड एक ही है ये वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल अगर फोर्सेस है ही नहीं, नेचुरली दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। RAS जो है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, अप्लाई अगर किया ही नहीं है तो रिएक्शन डेवलप होंगी नहीं। समेशन FS ऑलरेडी 0, तो लगा ही नहीं सकते अपन। अब बचे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अपने पास 2, एक है समेशन FY इज इक्वल टू 0, दूसरी है समेशन M इज इक्वल टू 0। 2 कंडीशंस अपन लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अननोन्स अपन देखते हैं। अननोन्स कितने हैं? आर ए वाई, ये एक अननोन हो गया। दूसरा पी सी, ये भी अननोन है। तीसरा पी बी, 3 अननोन हो गए। और अपने पास रिएक्शन इक्वेशंस है 2 इक्वेशन से 3 अननोन निकल नहीं सकते, बराबर है। इसलिए दूसरी कोई कंडीशन लगा सकते हैं क्या, वो अपने को पहले देखना होगा हर प्रॉब्लम में जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन आती है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऑलवेज तीसरी जो कंडीशन है 99% टाइम्स डिफॉर्मेशन कंडीशन अपन लगाते हैं, डिफ्लेक्शन वाली। ओके, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ये जो ए बी सी डी बीम है ये कैसी डिफ्लेक्ट होगी? ओरिजिनल ए बी सी डी जो है ये हॉरिजॉन्टल है, दी है। नेचुरली ये लोड अगर ऐसे लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं और यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, इसका मतलब ये तो पॉइंट हिलने वाला है ही नहीं, ये सपोर्ट है, बराबर है। ये नहीं हिलेगा, ये उसी पोजीशन में रहेगा। अब ये ऐसा पुल लगाएंगे तो नेचुरली द बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, बीम का डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, बराबर है। अब यहाँ पर बीम ऐसे अगर डिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर, तो ये जो है ये पॉइंट ऐसा डाउनवर्ड रहेगा, यहाँ पर ये डाउनवर्ड, ये तो इससे ये जो डायग्राम है ये कौन सी है? ये बीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर वाली। ये है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ये रहेंगी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है ये अपन यहां पर शो कर दिए। नेचुरली डिफ्लेक्शन हियर इट इज 0, हियर डिफ्लेक्शन डेल्टा is the deflection or displacement at C, no, at B point, it is B point, B. Displacement here, it is displacement at C, and here displacement is D, and displacement at A is 0. ये हो गई डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है इसमें एक रिलेशनशिप बन जाती है बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल रूल। अगर ये डेल्टा इतना है तो डेल्टा बी कितना रहेगा, सी कितना रहेगा, एक रिलेशनशिप अपन यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल रूल। तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगा, बराबर है। और 2 कंडीशंस इक्विलिब्रियम की लगा सकते हैं अपन, समेशन एफ वाई 0 समेशन एम 0, जितनी जैसी लगाना है वैसे अपन लगाएंगे। तो यहाँ पर एक कंपेटेबिलिटी या तो फिर डिफॉर्मेशन इक्वेशन अपन बना सकते हैं, हो गए। तो ये है सिचुएशन इस प्रॉब्लम की। सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू अप्लाई द कंडीशंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहले जो अपनी रेगुलर प्रोसेस है, यम ए इज इक्वल टू 0, ए पॉइंट इट इज हिंज पॉइंट, तो यहाँ पर मोमेंट विल बी 0। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पर मोमेंट लेते हैं, तो ये नेचुरली दोनों फोर्सेस उसी पॉइंट में से चले जाएंगे। तो इसकी जो आर ए एक्स और आर ए वाई ये अपने इक्वेशन में नहीं आएगा। देन डिस्टेंसेस आर अवेलेबल। द डिस्टेंस इज 2 मीटर गिवन, यहाँ पर दिया है। ये है 1 मीटर और ये 1 मीटर, ये डिस्टेंसेस दिए हैं। ये अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम जैसे इसको सॉल्व करना है। हियर आर
PC force in copper, it will cause anti-clockwise movement. So put here minus sign and multiply by 2. बराबर है, PC into 2. Then 20 into this distance is 3, 20 into 3 and 20 जो है ये ऐसे घूमेगा या ए पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा. सो इट इज क्लॉकवाइज, सो पुट पॉजिटिव साइन. ये PB जो है ये ऐसे रोटेट करेगा. सो PB इंटू टोटल डिस्टेंस इज 4 और ये माइनस क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा एंड इट इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर. सो आई राइट हियर PC विथ माइनस साइन, देन प्लस अभी यहाँ पर 30 प्लस 30 और माइनस ट्वाइस PB एंड इक्वल्स टू 0. अभी 30 मैं इधर लेके जाऊंगा तो वो भी माइनस होगा, तो सभी टर्म्स अपन प्लस कर सकते हैं. PC प्लस ट्वाइस PB एंड इक्वल्स टू 30 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. इसमें दोनों अननोन्स है तो अपन आगे नहीं जा सकते. ओके, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अपन ने लगा दी है. अब हो गया समेशन FY समेशन, वो कुछ लगाने की मतलब नहीं है क्योंकि उसमें RA Y आ जाएगा. अगर समेशन FY लगाते हैं तो उसमें ये फोर्स भी कंसीडर करना होगा अननेसेसरीली. वो उसमें 3 अननोन बनेंगे, वो अपने काम का नहीं है और अपने को निकालना है ये 2 वैल्यूज PC एंड PB. तो समेशन FY कुछ काम का नहीं है अपने लिए, तो समेशन FY यहाँ पर लगाने के कुछ मतलब नहीं है. अब ये इस पे से एक रिलेशनशिप बनाएंगे अपन फ्रॉम डिफॉर्मेशन by using similar triangle rule. सिमिलर ट्रायंगल रूल जो है उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर जो है मेन चीज अपने को जो निकालना है वो काम का है. तो ये एक रिलेशनशिप में काम में आएंगी और ये दूसरा DB और डी डेल्टा D उसका रिलेशनशिप अपन सिमिलर ट्रायंगल से बनाएंगे. ये जो डिस्टेंस है अपने को पता है, ये है 2 मीटर और ये टोटल जो है ये है 4 मीटर. 2 + 1 + 1 बराबर है. सो हियर डेल्टा B डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा D डिवाइड बाय 4. तो इसमें एक रिलेशनशिप आ जाएंगे अपनी. डेल्टा D और डेल्टा B इज इक्वल्स टू 0.5 एंड डेल्टा D. ये एक रिलेशनशिप बन गई. सिमिलर ट्रायंगल लगाया है, बाकी कुछ नहीं है. ये यहाँ पर और यहाँ पर ये रिलेशनशिप बन गई. यानी इसका मतलब ऐसा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस डिस्प्लेसमेंट से हाफ है 0.5. ओके, नाउ वी नो डेल्टा L और डेल्टा इज इक्वल्स टू PL बाय AE. ये अपना बेसिक इक्वेशन है. ये इक्वेशन अपने पास में है ऑलरेडी सेंटा पटेल में पहले चैप्टर में फ्रॉम हुक्स लॉ. अब इसको अप्लाई करते यहाँ पर लगाएंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, P ये जो है डेल्टा B यानी ये कॉपर का है, यहाँ पर कॉपर है. ओके, सो हियर PC लेंथ ऑफ कॉपर, देन डिवाइड बाय एरिया ऑफ कॉपर एंड E ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू. इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे ये कॉपर के संबंधित है, यहाँ पर कॉपर बार है इसलिए कॉपर की वैल्यूज लेना होगा. इसलिए एरिया ऑफ कॉपर उसकी लेंथ कॉपर की, लोड कॉपर, ई कॉपर, देन 0.5
डेल्टा डी हियर पी बी, क्योंकि ये डी है लेकिन यहाँ पर है ब्रास, तो ब्रास की वैल्यू लेना होगा इनटू एल बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ब्रास एंड ई ऑफ ब्रास, बराबर है। अब इसी इक्वेशन को अपन इलेबोरेट करके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जो नोन है उसमें पीबी और पीसी का एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। पीसी इट इज अननोन, पीसी पता नहीं है। लेंथ ऑफ कॉपर बार इज अवेलेबल हियर, इट इज 1 मीटर, दिस लेंथ इज 1 मीटर, it is available. 1 meter means our dimension, it is better to take in Newton and mm. So length is 1000. Area of copper here, diameter is given, so I can write here pi by 4 and 30 square. So this is the area of copper bar. E for copper, this value is in GPa. We know एक चीज अपने को पता है, अगर MPa है तो लिखते हैं न्यूटन पर स्क्वायर mm, बराबर है। GPa अगर है GPa, MPa और GPa में 10⁻³ का रिलेशनशिप है यहाँ पर। G स्टैंड फॉर 10⁻⁹, M स्टैंड फॉर 10⁻⁶, बराबर है, तो इनका डिफरेंस है 10⁻3, सो 10⁻3 न्यूटन पर स्क्वायर mm, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है 80, सो 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, सो ये हो गया न्यूटन पर स्क्वायर mm। देन 0.5 ये तो है वहाँ पर। PB इज अननोन, इट इज टू बी फाइंड आउट। लेंथ ऑफ ब्रास इट इज 1.5, सो इन mm 1500, देन डिवाइड बाय एरिया पाई बाय 4 एंड 25 स्क्वायर, बिकॉज डायमीटर इज 25 mm गिवन। देन ई की वैल्यू वो दी है 150, और फिर से GPa है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ओके, सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस P is equals to, after solving this we will get the value here. This is our equation number 2. अब इक्वेशन नंबर 1 में PC PB अननोन है, यहाँ पर PB और PC का रिलेशनशिप मिल गया है। वी कैन पुट PB वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 I will get the value of PB is equals to 11.64 kilonewton, and here the value of PC is 6.72 kilonewton, these values. But here the question is to find out the value of sigma C and sigma B. ये दो वैल्यूज अपने को निकालना है। तो यहाँ पर और एम इज टू फाइंड आउट सिग्मा C and sigma B. Therefore directly I am going to write sigma C is equals to PC by area of copper, and from which we will get the answer here 9.5 MPa, and it is compressive. Then sigma B is equal to PB by AC is equal to, here it is 2.37 MPa, and it is tensile.
ओके, इन दिस वे वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम अगर आते हैं तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ये निकालना है ऑलवेज करेक्टली। उसके बाद मेन चीज़ जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन से प्रॉब्लम के इक्वेशन सफिशिएंट होते हैं या नहीं है तो उस वक्त एक डिफ्लेक्शन यानी डेल्टा या डिफॉर्मेशन का इक्वेशन जो है उसको भी उस इक्वेशन को अपन ये भी बोलते हैं कि कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, तो उससे अपने को दूसरा एक इक्वेशन अवेलेबल हो जाता है। ये सिचुएशन कई सब्जेक्ट्स में और अदर चैप्टर्स में आने वाली है, तो वहाँ पर अपन ये कंडीशन से दूसरा एक इक्वेशन बनाएंगे और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड ऑफ साइज 100 by 50 mm, फिगर इज गिवन हियर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 100 by 50, हियर 100 by 50 आर ग्लू टुगेदर एज शोन इन फिगर। ये दो जो पीस है यहाँ पर ग्लू लगाया गया है, ये ग्लू के सहारे इनको ज्वाइन किया गया है। डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेफ लोड। अब यहाँ पर इंक्लाइन ऐसा ग्लू लगाया है तो कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये ब्लॉक कंप्रेशन में क्रश ना हो और ये शियर में इस निकल न जाए। वैल्यू ऑफ सेफ लोड दैट कैन बी अप्लाइड टू ब्लॉक इफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 20 MPa, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस अलाउएबल परमिसिबल इज 20 MPa और शियर स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 9 MPa। शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू दी है, इसके ऊपर नहीं जा सकते। वो मैक्सिमम वैल्यू अलाउएबल परमिसिबल वैल्यूज ये है। ओके, सो हियर आल्सो पहली चीज अपनी रहेगी फ्री बॉडी डायग्राम। या तो फिर ये ब्लॉक ले लो या ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पर पी फोर्स ऊपर में दिया है तो ऊपर का ये जो ब्लॉक है इसमें क्या फोर्सेस डेवलप होंगे दैट वी हैव टू शो इन फ्री बॉडी डायग्राम। तो ऊपर का जो ब्लॉक है ये इस तरह है, और ये ऐसा ये ऊपर का ये ब्लॉक में निकल लिया। ओके, हियर आई एम गोइंग टू शो दिस फोर्स इज P, एक फोर्स लगाया हुआ है यहाँ पर। ये इंक्लाइन प्लेन में प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर जब होगा तब, और ये डिटेल होने वाला है। अगर प्लेन ऐसे इंक्लाइन है तो यहाँ पर जो फोर्सेस डेवलप होती है, यहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल फोर्स जो है, स्ट्रेस जो है ये ऐसा रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा n लिखा जाता है, लेकिन मैं सिग्मा ही दे रहा हूँ क्योंकि दूसरा है स्ट्रेस डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। और दूसरा होता है यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये इस तरह, ये टेंजेंशियल। दो स्ट्रेसेस, एक नॉर्मल और दूसरा टेंजेंशियल, ये स्ट्रेसेस यहाँ पर शो करना है। ओके, अब यहाँ पर इंक्लिनेशन दिया है 20, ये इंक्लाइन हो गए फोर्सेस। ये जो P फोर्स है ये भी इनके डायरेक्शन में अपन रिजॉल्व कर सकते हैं। हियर वी कैन रिजॉल्व दिस फोर्स लाइक दिस, और ऐसा उसके दो कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं अपन, बराबर है। ये एक ऐसे रहेगा डाउनवर्ड, ये भी ऐसे रहेगा, इसके दो कंपोनेंट्स अपन निकाल सकते हैं। ये एंगल 20 दिया है, फ्रिक्शन चैप्टर अपना हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, उसमें ये एंगल कैसे निकालना है अपने को पता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा दिस वुड बी 20 डिग्री,
ये वाला नॉर्मल को अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर कोई ऐसा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ये रहेंगी, ये नॉर्मल और ये एंगल, ये जो एंगल होता है द सेम एंगल विल बी हियर, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। सिमिलरली हियर में यहाँ पर क्या दिया है, ये ऐसा है बराबर है, और ये फोर्स ऐसा है, ये जो है और ये दोनों अपोजिट एंगल है। ये अगर 20 है, यहाँ से ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा। द सेम थिंग आई हैव रिटन देयर, वही दिया है। ओके, अब इसके रिजॉल्व कंपोनेंट जो है मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पर। रिजॉल्व कंपोनेंट्स, ये एंगल गिना है अपन ने वर्टिकल से, यहाँ पे वाई एक्सिस से यहाँ पर, तो ये जो कंपोनेंट है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P cos ऑफ 20 और ये रहेगा P sin ऑफ 20। ये रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन दैट यू नो इन फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, ये चीज अपने को लगेंगी। ये होगी फ्री बॉडी डायग्राम पूरी कंप्लीट। ये फोर्स की डायरेक्शन क्यों इधर दी गई है, ये अप्लाइड फोर्स का रिजल्ट कंपोनेंट इस तरफ है और रिएक्टिव फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, इसलिए मैंने इसको शियर स्ट्रेस जो है ये इस डायरेक्शन में दिया है। अगर इस डायरेक्शन में दिए तो आंसर निगेटिव आएगा, तो उस वक्त भी अपन उसको चेंज कर सकते हैं कि अपना एजम्पशन रॉन्ग हुआ करके। ये नेचुरली ये कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो रिएक्शन यहाँ पे ऐसी अपवर्ड उसको बैलेंस करने के लिए इधर रहेगी। अब ये और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ओके, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि ये जो क्रॉस सेक्शन दिया है ऐसा दिया है, A to C दिया है, ये C पॉइंट है बराबर है। AC 100 दिया है 50, लेकिन अपने को चाहिए ये यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने को चाहिए, AB चाहिए बराबर है। विड्थ वही रहेंगे, सो विड्थ विल बी हियर, इट इज 50 mm। ओके, ये चाहिए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, है ना। हियर द क्वेश्चन आस्क, आई एम गोइंग टू राइट हियर टू फाइंड में क्या पूछा गया है यहाँ पर, P की वैल्यू ऐसी चाहिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है ये भी इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए 20 के ऊपर, और शियर स्ट्रेस 9 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो P की वैल्यू कितनी रहेगी वो देखना है। देन वी गो फॉर सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन में पहले ये थोड़ा सा ये तो कर दिया, ये भी सॉल्यूशन का एक पार्ट हो गया है बराबर, ये सॉल्यूशन का एक पार्ट है। ये डेटा गिवन है। ओके, दिस इज डेटा गिवन, ये वाला, और ये सॉल्यूशन का पार्ट है। ए बी जो है A to B ये नहीं पता, A to C पता है 100, तो ये कुछ दिक्कत नहीं। बाय अगर ये साइड पता है और ये साइड निकालना है तो अपने को इक्वेशन लगाना पड़ेगा, cos ऑफ 20 इज इक्वल्स टू AC बाय AB बराबर है। cos 20 is equal to AC by AB. So here our aim is to find out AB. That's why AB is equals to AC upon cos of 20, and AC is known to us 100 and divided by cos of 20. Therefore area is equals to 50 into AB, 50 into AB की लाइन और into 50. So AB is 100 by cos of 20, it is equals to 5321 and square mm. This is the area at AB प्लेन पे एरिया ये निकल गया आपका। देन अभी यहाँ पर
इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशंस, फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशंस summation fx is equals to 0 algebraic sum of forces along एक डायरेक्शन। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है ये एक डायरेक्शन पर कंसिडर करेंगे और ये वाई डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। ओके, सो एक डायरेक्शन में फोर्सेस कौन से हैं? एक p साइन ऑफ 20, ये इस तरफ जा रहा है करके माइनस साइन यूज करेंगे, इधर आ रहा है नेगेटिव की तरफ, और प्लस ये टाउ एन इक्वल्स टू 0। यहां पर एक चीज, ये छोड़ा यहां पे चेंज करना होगा। एक चीज ध्यान में रखना है, जब ये कंडीशंस लगाते हैं इक्विलिब्रियम की वगैरह, वहां पर वो कंडीशन फोर्सेस के लिए है, ट्रेसेस के लिए नहीं है। ओके, ट्रेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू फोर्स, बराबर। तो ट्रेसेस के लिए वो कंडीशन नहीं है, कंडीशन है फोर्सेस के लिए। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा इनटू एरिया, दैट इज 53/1 एंड इक्वल टू 0, बराबर है। ये हो गया अभी फोर्स, ये ट्रेस इनटू एरिया। हियर सिग्मा, or I can write here stress into area, and it is equals to force, because we know sigma is equals to P by A, so P is equal to sigma into A, this will be the force। so यही फोर्स मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये है सिग्मा यानी स्ट्रेस और ये है एरिया। ओके, सो कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते समय वो फोर्सेस के लिए होती है, स्ट्रेसेस के लिए नहीं। तो ट्रेसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू फोर्स। ओके, ये इक्वेशन जैसे कि वैसे रख देते हैं फिलहाल। देन सेकंड वन कंडीशन समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना है? P cos ऑफ 20, और वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पुट हियर नेगेटिव साइन। देन सिग्मा इज अपवर्ड एंड इट इज स्ट्रेस, अगेन दिस स्ट्रेस इज टू बी मल्टीप्लाई बाय एरिया टू कन्वर्ट इनटू फोर्स। हो गया, ये दो इक्वेशंस अपने पास में आ गए, बराबर है। अब इसमें दो वैल्यूज अपने पास अवेलेबल है, जो डेटा गिवन में है वो अपन ने अभी तक यूज नहीं की है। P की वैल्यू तो निकालना है, दोनों इक्वेशन में P निकालना है, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेस अलाउएबल परमिसिबल आर गिवन। टाउ यानी शियर स्ट्रेस 9 दिया हुआ है, और सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम लिमिटेड टू 20 ये दिया हुआ है। उसको पुट करेंगे तो दो वैल्यूज अलग अलग P की आएंगी। सो इफ सिग्मा, पहले टाउ ले लेते हैं क्योंकि पहला इक्वेशन ये है करके, टाउ इज इक्वल्स टू 9 MPa एज इट इज गिवन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, उसमें अगर टाउ की वैल्यू 9 अगर पुट करते हैं, सो डायरेक्टली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ P 113249.7 and Newton. Okay, this value we get. Then if sigma is equals to 20 MPa, from equation 2, अब इस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं, सो P is equals to 77787.8 Newton. So these are two values available. अभी यहां पर क्या है, कंप्रेशन में अगर यहां पर फेल्योर चाहिए तो P की वैल्यू इतनी लगेंगी, और शियर में फेल्योर चाहिए तो ये लगेंगी।
So we have to avoid failure of this block, ना तो compression में ना shear में. अगर failure नहीं होना है तो मिनिमम P पुट कर सकते हैं कि P की वैल्यू जैसे ही ये रीच हो जाएंगी, ये मिनिमम है दोनों में से, ये रीच हो जाएंगी तो shear में फेलियर, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर फोर्स लगाते हैं तो shear में फेलियर हो जाएगा, ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा. ये तो बाद में काम में आएगा. तो पहला जो फेलियर है यह रहेगा मिनिमम वैल्यू पे. सो फेलियर विल कॉज फ्रॉम shear earlier. Therefore, limiting value or maximum allowable P, maximum allowable P is the value minimum. मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू जो है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ P रहेगी. ओके.